So now we are going to discuss about the vitamin D, very important vitamin, and how it actually regulates the calcium metabolism in the body, right? So first of all, vitamin D is again derived from steroid hormones. It is derived from steroid hormone, right? And in nature, two types of vitamin D forms are present. Number one is called vitamin D3. Second one is called vitamin D2. Now, the important thing which you need to remember, which one form is actually already present in the animals and which one is actually not present in the animals. So, you need to remember vitamin D2 is actually absent in the animals. It is absent in animals. Whereas D3, it is present in animals. And where it is present? In the skin cells. In the skin cells of the animals. Right? But in the skin cells, it actually exists there in a inactive form. You need to make it active. Right? And if it is not present in animal, where it is present? It is present in the plants, which means if you are deficient in the vitamin D, then you can also take the vitamin D diet, vitamin D2 diet, and you can fulfill your vitamin D deficiency in the body, because when it will goes to the body, it acts same as the D3, right? So now let's see how these two are being metabolized in the body. So D3, first of all, you should know the inactive form of vitamin D3 and D2. The inactive form of D3 vitamin is called 7-dehydrocholcalciferol. This one is the inactive form of your vitamin D. And the vitamin D2 which is present in the plants, its inactive form is called ergocalciferol. Ergocalciferol, and it is derived from the ergosterol, which is another type of steroid present in the plants. So this one also is the inactive form of vitamin D. Now how they are being activated in the body? Let's talk about first D3 form. So D3 form, which is 7-dehydrocholcalciferol, inactive form present in the skin cells. When you go to the light, or you can say sunlight, and in the sunlight we also have different type of UV light, UV rays, and when these UV rays actually falls into the skin cells, then it will starts to activate. जब आप सनलाइट में जाते हो तो यूवी लाइट क्या करती हैं? फोटोलिसिस करती हैं, जिसमें जो आपकी 7-dehydrocholcalciferol जो टाइप होती है इनएक्टिव फॉर्म, ये एक्चुअली चेंज हो जाती है. चेंज इन द सेंस दिस एक्चुअली बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, जो आपकी बॉडी में फ्लो हो रहा होता है, आपकी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट? एंड जो चेंज होता है इस स्ट्रक्चर में 7-dehydrocholcalciferol, दैट इज कॉल्ड कोलकैल्सिफेरॉल. कोलकैल्सिफेरॉल, right? But abhi still the vitamin D is not still active. Then what happens? Through the blood circulation, it reaches to the different parts of the body, organ of the body, especially in the liver or in the kidney, where different type of reactions occur, which are called hydroxylation reactions. Hydroxylation reactions. And what happens in the hydroxylation? The cholecalciferol at different positions, it start to
वहां पे उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, विच मीन्स हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स उसमें ऐड होते हैं एट पर्टिकुलर पोजीशन, फॉर एग्जांपल एट फर्स्ट कार्बन एंड एट 25 कार्बन, right? And after the hydroxylation reaction, the structure, the molecule is called 125 dihydroxy cholecalciferol, cholecalciferol. सिंपल वे में इसका नाम दिया जाता है which is called calcitriol. This is your activated vitamin D. Now your vitamin D is activated and now it is ready to do its functions. What type of function it does? When there is the presence of activated calcitriol in the body, it actually goes to your intestine, and in the intestine it actually absorbs your calcium ions, which are actually how they are present by your diet which you had taken. In the diet you had taken the calcium ions, and calcium ions are being absorbed in the intestine by the vitamin which is called calcitriol. So calcitriol आपकी जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होता है उसमें हेल्प करता है. And after the calcium absorptions, what happens? This calcitriol, it does different type of roles. If there is another type of function of the calcium in the metabolic reaction, it does their metabolic activities करता है. Second thing, it does the deposition. It helps the deposition of the calcium in various organs, for example, in bones or in your teeth. Right? Now you can see why this is very important. Calcium diet is very important. You have to take it, and then the vitamin D activation is also very important, because अगर vitamin D activate नहीं होगा, आपका जो calcium levels होंगे, जो absorption होगी, deposition होगी, proper नहीं हो पाएगी. And if it is not doing its role, then your bone starts to weak and your teeth starts to weak. So इस टाइप से आपका जो कैल्शियम रेगुलेशन होती है विटामिन डी डेफिशिएंसी से अफेक्ट होती है. राइट? अब इसमें हम नेक्स्ट चीज देख लेते हैं विच इज द डेफिशिएंसी डिजीज. विच इज डेफिशिएंसी डिजीज occurs due to the low concentration or deficiency of the vitamin D. So सबसे ज्यादा फेमस जो डिजीज है that is called rickets. That is called rickets. It occurs due to the deficiency of vitamin D, and what it actually affects, it affects the growth. It causes the stunted growth in the patients, and it also affects the bone, which causes the deformed bone formation in the body. Right? That is why it is very much preferred to the different type of peoples or patients which are actually taking the vitamin D deficiency diet. Why? Because अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी वाली डाइट वो लेंगे तो उनको इस टाइप के डिजीज होने के रिस्क जो है वो बढ़ जाएंगे. और इसको कैसे वो स्टॉप कर सकते हैं? बाय ओनली गोइंग टू द सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट. अगर सनलाइट में जाएंगे उनका जो विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म है वो वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा बाय सिंपल एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के बाद आपके लिवर एंड किडनी में रिएक्शंस होंगी, हाइड्रोक्सिलेशंस होंगी, और आपका कैल्सिट्रॉयल वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा. एक्टिवेटेड कैल्सिट्रॉयल आपके जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है उसको अफेक्ट करेगा. तो आपके जो बोन्स हैं, जो टीथ है, वो वहां पे स्ट्रॉन्ग बनेंगे. तो अगेन आपको डिजीज होने के रिस्क यहाँ पे कम हो जाते हैं. तो इसमें एक ही क्या किया जा सकता है? सनलाइट ली जा सकती है, जिससे आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो. नेक्स्ट इसमें रोल प्ले आ जाता है इफ यू टेक विटामिन डी एनरिच्ड डाइट. विटामिन डी एनरिच्ड डाइट जो मोस्टली किस में प्रेजेंट होते हैं? आपके फैटी एसिड्स में. बिकॉज ये फैटी एसिड डिराइव्ड क्या है? ये विटामिन है, तो ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होगा? फैटी एसिड्स में प्रेजेंट होगा. फैटी एसिड्स जिस वाले फूड में प्रेजेंट होंगे वो वाली डाइट आपको कंज्यूम करनी चाहिए. राइट?
उसमें अगेन सेम क्या होगा, इफ यू आर नॉट गोइंग इन द सनलाइट then vitamin D will directly go into the body in the liver and kidney organs. There it will do the hydroxylation and it will start the calcium regulation. Right? Same way, this is the deficiency disease. If there is the higher concentration of the vitamin D in the body, that can also cause a disease which is called vitamin D intoxication. विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी होती है बॉडी में, राइट? विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन की वजह से क्या होता है, और आपके जो कैल्शियम डिपोजिशन है वो अदर देन बोन्स और टीथ के अलावा कहाँ होना स्टार्ट हो जाती है? दिस विल स्टार्ट इन योर सॉफ्ट टिश्यूज. This deposition starts in your soft tissues and cause different type of stones, and mostly the stones which are present, they are called kidney stones. So mostly ये मत सोचो कि अगर आप कोई डाइट ले रहे हैं तो आपको किडनी स्टोन सिर्फ किसकी वजह से हो रहे हैं? डर्ट की वजह से हो रहे हैं, सीड्स की वजह से हो रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से हो रहे हैं. नो, आपको किडनी स्टोन्स किसकी वजह से हो सकते हैं? विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी हो सकते हैं. हाउ? बिकॉज विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन, इट स्टार्ट्स टू डिपोजिट द कैल्शियम मिनरल इन द अनडिजायर्ड लोकेशन. इन योर अनडिजायर्ड लोकेशन कौन सी हुई? आपकी सॉफ्ट टिश्यू होगी, आपके ऑर्गन्स में, किडनी में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने डिपॉजिट करना, या फिर आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स है जैसे कि आपके लंग्स भी हो सकते हैं, वहां पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया. तो इस टाइप की आपकी जो स्टोन प्रॉब्लम जो है वो बॉडी में अराइज हो जाती है. राइट? नेक्स्ट थिंग आती है, एक और फैक्टर आता है विच इज द स्किन पिगमेंटेशन. स्किन पिगमेंटेशन. Skin pigmentation, you have seen some people are very fair and some people they have dark complexion, and now their fair and dark complexion also have some type of biology. The pigmentation is due to the regions they live on, right? कौन से regions में वो survive कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो आपके माउंटेन एरिया में रहने वाले पीपल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके जो नदर्न एरिया के लोग होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? फेयर होते हैं, राइट? बट वेयर एज आपके जो नॉर्मल में ऐसे पीपल्स जो आपके कहाँ रहते हैं? हायर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट में होते हैं, वो डार्क कॉम्प्लेक्शन में होते हैं, राइट? मोस्टली जैसे साउथ इंडिया में हो गया, मोस्ट ऑफ द पीपल वहां पे कैसे मिलेंगे आपको? डार्क कॉम्प्लेक्शन के मिलेंगे. या फिर आपके जो अफ्रीकन पीपल्स होते हैं वो भी डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं. हाउ? बिकॉज दे actually get lot of sun exposure. अब pigmentation यहाँ पे कैसे आ जाती है? Pigmentation is actually nothing but it actually protects the body from vitamin D intoxication. ये एक natural altered प्रोसेस है नेचर में जिसमें क्या किया गया है? नेचुरली विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन को कम करने के लिए जो पीपल सनलाइट में ज्यादा एक्सपोजर में रहते हैं उनको बचाने के लिए क्या किया गया है? पिगमेंटेशन यहाँ पे वर्क आ जाती है. पिगमेंटेशन आपका मेलानिन होता है और मेलानिन मोस्टली क्या करता है? आपके जो बॉडी की डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, उनको प्रिवेंट करता है, राइट? सो इसके वजह से, पिगमेंटेशन की वजह से आपको डिफरेंट टाइप के डिजीज होने के चांसेस जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, राइट? तो ये रीजन है जिसकी वजह से जो पिगमेंट होता है, पिगमेंटेशन बॉडी में होती है, वो वेरी करती है इन डिफरेंट रीजन्स. ओके, तो अभी इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे आपके एग्जामिनर्स को क्वेश्चन पूछने के. व्हाई? बिकॉज ये वाला जो आपका सेक्शन है ये एक्चुअली 2-3 जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर करता है. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें कवर हो रहे हैं आपके विटामिन. ये तो अभी हमने एक ही विटामिन डिस्कस किया है, नेक्स्ट विटामिन भी हम डिस्कस करेंगे विच आर लिपिड सॉल्युबल्स, राइट? तो यहां से आपका एक कौन सा हो जाता है?
सेकेंड टॉपिक आपका कवर हो जाता है विच इज विटामिन, राइट। नेक्स्ट इसमें आ जाती है मिनरल्स की, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है आपसे, मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से एक और टॉपिक कवर हो जाता है विच इज मिनरल्स। ये हो गया। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जो अदर हम विटामिन पढ़ेंगे, सम विटामिन आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड दे हैव रोल इन द आई विजन, राइट। तो उसमें से भी एक आ जाता है, मोस्टली उनको बोलते हैं पिगमेंट्स, राइट। पिगमेंट्स में जो प्रेजेंट होते हैं विटामिन, तो वो वाला टॉपिक भी वो कवर कर लेते हैं। सो इस तरह से आपके एक ही टॉपिक में मल्टीपल टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से एग्जामिनर क्या करता है, आपसे डिफरेंट एक एक क्वेश्चन ना पूछ के एक कॉमन क्वेश्चन उठा लेता है। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन सेटअप करने का। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं।